Welcome to Learning with Ankit. I hope your preparation is going quite well and good. Just in order to give you the final touch of your revision, here are the some of the important questions that I have selected from all the 4 chapters of your class 10th chemistry. So without any further delay, let us discuss one by one each questions in very much detail. There are some MCQ questions, that is a multiple choice question, as you all can see. Important questions I have chosen over here, as well as some short answer types and one long answer type questions you will see over here. Yes, the link of this PDF copy I'll try to provide this in the description. From there you can have the hard copy or the soft copy of it as per your need, right? So without any further delay, let's start. The very first question is that when copper turnings are added to silver nitrate solution. Okay, so let me write the reaction first of all. This is the way you also need to do in your exams also. It is given copper turnings, so I'm just writing over here copper turnings added to silver nitrate solution. The formula of silver nitrate is your AgNO3. I'm not writing the state over here because it's the just MCQ questions, तो मैं यहाँ पे states नहीं लिख रहा हूँ, keep in mind. Okay, it is and then after it is being it's given here a blue colored solution is formed. We know that blue colored solution, it has been formed of CuNO3 whole twice, right? That is CuNO3 whole twice, that is a copper nitrate, along with the silver will be left over here because copper is a more reactive, so this copper will displace this silver from here, right? So see what are the possible options are here. Displaces silver from the solution, yes, because it's written because it is because copper displaces silver from the solution, yes, this is right. Then after forms a blue colored complex with AgNO3. No, it's a blue not color because of AgNO3, it is because of CuNO3 all right. So this option is wrong. Then after it is being given in the question, copper is oxidized to Cu plus. Yes, right. Earlier the copper, the state of copper was 0, like it was a neutral atom, but now it is a Cu2 plus state and the loss of electron is the oxidation. So this one is option is also correct. It is reduced to Cu plus. No, it's not reduced, it's oxidized. So it does mean option number 1 and 3 is correct. So option number C will be your right option. Yes. So let us discuss now the second question. See the second question. Identify the correct option from the given table which represents the type of reaction occurring in step 1 and step 2. See, limestone is given to us. So first of all, let me tell you what is limestone, right? Just wait. What is limestone? We know that the formula of limestone is CaCO3, that is a calcium carbonate here, CaCO3, right? Now heated, it is being heated, and if we are heating this compound, it does mean the type of reaction will be your decomposition. I am writing over here. Now the type of reaction will be your decomposition reaction, and we know that all the decomposition reactions required energy. It does mean they requires heat. So therefore this step first must be your endothermic reaction, right? So देखो यहाँ पे टिक लगा है कि रिएक्शन ऑप्शन में और यहाँ टिक लगा है. So it does mean option A and option D is already eliminated. Then after is being given in the question, देखो अब क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग के पास यहाँ पे, right? Listen, see here it was given like the step 2 में देखो इट इज़ आफ्टर हीटिंग इट इज़ फॉर्मिंग एज अ कंपाउंड एक्स. ठीक है, अब देखो ये कौन सा कंपाउंड एक्स बनाएगा हीट करने के बाद, CaCO3. जब आप इसको हीट करोगे तो इट विल गिव यू द कंपाउंड CaO, दैट इज कॉल्ड एज अ कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, अलॉन्ग विद द CO2. ठीक है, अब इसी CaO में फिर से वाटर मिक्स किया जा रहा है. सो आफ्टर मिक्सिंग वाटर अगेन वी विल गेट द कंपाउंड CaOH होल ट्वाइस, दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और अब ये रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है. तो एक्सोथर्मिक में देखो यहाँ पे आपको टिक मिलेगा यहाँ पे, राइट? यहाँ देखो क्रॉस है. सो इट डज मीन ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? सी now let us see the third question. A student took sodium sulfate solution. So first of all, let me write what's the formula of sodium sulfate. We all know that the formula of your sodium sulfate, it is your Na2SO4, right? Na2SO4. See students, whenever such type of question being asked, if you know the correct formula, first of all write the formula. ऐसे ही अगर आपने आपसे कुछ गेस करोगे तो हो सकता है आप वहाँ पे मिस्टेक कर जाओगे. सोडियम सल्फेट solution in a test tube added to barium chloride solution. We know that the formula of barium chloride is your
Cl2. ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग वी नो दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस, ऑल्दो इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. लेट मी रीड द इट फर्स्ट. ही ऑब्जर्व दैट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड. सो देखो यहाँ पे सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, इट विल डिस्प्लेस हियर एंड बेरियम विल टेक इट्स पोजीशन. सो देयरफॉर दिस कंपाउंड फॉर्मेशन विल बी ओवर हियर, दैट इज ए BaSO4. ये आपका एज अ प्रेसिपिटेट बन जाएगा यहाँ पे, राइट. तो स्टेट वी विल राइट ओवर हियर सॉलिड, इन केस अगर ये शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता तो, राइट. एंड अलॉन्ग विथ वी विल कंपाउंड गेट हियर दैट NaCl. ठीक है, बैलेंसिंग आप करके देखना कितना आएगा आंसर. देन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड द फॉर्मूला ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज, सॉरी, द कलर एंड, देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपको द कलर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस. तो देखो यही जो आपका मिल रहा है यहाँ पे BaSO4, दिस इज योर इनसॉल्युबल सब्सटेंस. इसी के बारे में हमें बताना है कि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमारा क्या है और इसका कलर क्या है. तो देखो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमें मिल रहा है यहाँ पे BaSO4, इट इज़ बीइंग गिवन. देखो आप यहाँ पे दिस इज़ योर BaSO4. यहाँ पे देखो BaSO4 यहाँ पे भी है, BaSO4 होल ट्वाइस है यहाँ पे, सॉरी. तो बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. दिस वन, दिस वन. अब तीन ऑप्शन में हमें चेक करना है. पिंक कलर इसका नहीं होता है तो ऑप्शन डी यहाँ से डिलीट हो गया हमारा. अब ग्रे और वाइट में हमें कन्फ्यूजन है यहाँ पे. देखो तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट. Coming to the fourth question, C6H12O6. See, look at here. In this question, C6, let me little bit zoom it. Right. So C6H12O6, O2 के साथ रिएक्शन XCO2 and H2O. Just comment me and tell me know, let me know, sorry, which reaction is this? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का कौन सा है? इन केस अगर फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन है तो वेदर इट्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. आई जस्ट वांटेड टू नो दैट हाउ विल यू क्लासीफाई दिस रिएक्शन. आप कैसे इसको लिखोगे अगर इसका टाइप पूछा जाता है तो. चलो फिलहाल बैलेंसिंग के लिए देखते हैं हम लोग. यहाँ पे पूछ रहा है एक्स कितना होगा और आपका वाई कितना होगा. तो ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है यहाँ पे. इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस व्हाट विल राइट ओवर हियर 6 हियर एज वेल. एंड हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, बट हियर इन द केस हाइड्रोजन इज 12. सो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस विल राइट ओवर 6. तो 6 2 जा 12 यहाँ पे हाइड्रोजन. अब देखो हाइड्रोजन 12 यहाँ पे. लेट अस काउंट द नंबर ऑफ कार्बन. 6 कार्बन हियर, 6 कार्बन हियर, बट ऑक्सीजन इज 6 2 जा 12 हियर एंड देन आफ्टर 6 to 18. Similarly 6 2 ja 12 and 6 18. So it does mean 6 and 6 will be the right option. That is option number A is your correct, right. Coming to the next question, that is question number 5th. Again this is also a very important question. Yellow color of turmeric changes to red on addition of a soap solution. We know that all the soap solutions are of the basic in nature, right. तो जो सोप सोल्यूशन होते हैं हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं. तो चलो इतनी तो क्लियर हो गई कि अब कह रहा है उसके बाद कि सब्सटेंस पी इज एडेड टू टर्मरिक, देयर इज नो चेंज इन कलर. अब सब्सटेंस पी ऐड किया जा रहा है टर्मरिक में तो कोई चेंज कलर में नहीं ऑब्टेन हुआ है हमें यहाँ पे. इट डज मीन जो सब्सटेंस पी है दैट मस्ट बी एसिडिक इन नेचर, बिकॉज वी नो दैट कि टर्मरिक को जब हम ऐड करते हैं बेस में तब जाके हमें रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिलता है यहाँ पे. ठीक है, वही कह रहा है कि चेंजेस टू रेड कलर या रेडिश ब्राउन भी आप कह सकते हो. इट डज मीन एसिड का जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पी इज एन एसिड. आई होप ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, यू अंडरस्टैंड दिस. 6th क्वेश्चन देखते हैं. सी क्वेश्चन नंबर 6 हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर. वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2. कोई इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है. प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज CaSO4 dot half H2O, that is a calcium sulfate hemihydrate. It also contains water crystallization. Similarly washing soda also has the water crystallization. Formula is Na2CO3 dot 10H2O is here, but in case of baking soda its formula is only NaHCO3. so therefore option number 1st and 4th is correct. So let me find out. Yes, option number D is your correct, right. So this was a 6th question. Coming to the next one, 7th part. Which of the graph, which of the graph shows the how the pH of milk changes at it forms curd? We all know that curd is bit acidic in nature, right. It's acidic in nature. So it does mean as the formation of curd will start taking place, the pH will drop, right. Means there will be the decrease in the pH value towards the acidic nature. Towards acidic nature, it does mean it will be less than 7. Sorry, that's a wrong symbol. It will be less than 7. ठीक है, तो pH की वैल्यू घट रही होगी. तो आप देखो ग्राफ आपके पास कौन कौन से दिए हैं. दिस A1 ग्राफ, B, C एंड देन D ऑल्सो देयर इज देयर. मैं भी स्क्रॉल करता हूँ पेज में, आपको दिख जाएगा.
ए वाला ही ग्राफ देखो आपको ऐसा है, देयर यू विल सी दैट कि यहाँ पे पीएच जो ऑलरेडी इनिशियली पीएच यहाँ था, अब पीएच देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो इट डज मीन एसिडिक कैरेक्टर अब बढ़ रहा है बिकॉज कर्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है हम लोग का। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट ऑप्शन। अभी आप ऑप्शन डी देख लेना, आई जस्ट स्क्रोल इट राइट नाउ। सी देखो डी में भी ये गलती है कि पहले पीएच घट तो रहा है, फिर अचानक से फिर पीएच बढ़ रहा है। सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एज सच। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखने में मुझसे ऑप्शन छूट गया है, दैट्स विल बी होम आई कैन से दैट अ टास्क फॉर यू ऑल। कि एक डायग्राम दिया है जिसमें 4 अलग अलग बीकर हमारे पास हैं। इन फर्स्ट वी हैव टेकन अ जिंक, देन आफ्टर मैग्नीशियम, देन आफ्टर आयरन एंड देन आफ्टर कॉपर इज देयर। अब सब में अलग अलग फिनोमेना हो रहे हैं। देखो मैग्नीशियम में आप देखोगे ना बबल्स यहाँ पे स्टिक कर गए, जिंक डाइल्यूट HCl करेंगे तो एफरवेसेंस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज कर रहा है। तो सिमिलर क्वेश्चंस रिलेटेड टू विल बी आस्क्ड टू यू एंड वेरी इजीली यू कैन अटेम्प्ट। Why I have included this question? Because a very similar to such type of questions is being given in the CBSE sample paper, and a number of sample papers such type of questions are very common type of questions. So that's why I have included. Means you need to practice such type of questions before going to your exam. Coming to the next 9th one question. See, question number 9. See, the table shows 2 different materials and their electronic configuration, although I haven't made the table, but yes, I have written in the form of table. Magnesium and sulfur. See, the electronic configuration of magnesium is here is given and sulfur is given. In order to form the compound, what you will write here, apply the concept of class 9 chemistry, that is magnesium and sulfur here. Magnesium last cell 2 electron, it will lose its 2 electrons, its valency will be +2, and for sulfur it will be -2. Just cross multiply, you will have the formula that will be your MgS, राइट। सो यहाँ से भी आप देख के बता सकते हो कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर विल रिएक्ट विथ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम। तो देखो एक एटम मैग्नीशियम का यहाँ पे, एक सल्फर का यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है, आप ऐसे न करके आप ये से भी देख सकते हो कि लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, राइट। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला कहाँ पे है, सल्फर के पास देखो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इट कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अगेन कंप्लीट इट्स लास्ट सेल 8 इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली विच इज ऑक्टेट। इट डज मीन मैग्नीशियम आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही सल्फर एटम को दे देगा। सो देयरफॉर 1 सल्फर एटम विल बी रिक्वायर्ड, राइट। दिस वाज अ लिटिल बिट आई कैन से different questions, different question type of. Coming to the next part, next question, D. See this question, the iron this question is that iron rod is covered with a reddish brown layer which damages, I hope आप नहीं पढ़ पा रहे होगे शायद, yes, now you all can read this question. See, reddish brown layer, right, which damages द सर्फेस ऑफ द रॉड, इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन इक्वेशन हम लोग का है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस क्वेश्चन इज ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। सो हमें पता है रस्टिंग ऑफ आयरन जब भी होता है तो वी गेट द ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड दैट फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन इज दैट Fe3O4। सो ऑप्शंस विच हैव Fe3O4 विल बी करेक्ट, रेस्ट ऑफ को पहले हम एलिमिनेट करते हैं। तो Fe2O3 ये कैंसिल हो गया, FeO ये कैंसिल हो गया। हियर वी आर गेटिंग Fe3O4, यहाँ पे Fe3O4 है। अब देखते हैं कौन सा करेक्ट बैलेंस फॉर्म में है। हियर 3 आयरन एटम इज हियर नॉट बैलेंस्ड, 4 to 8 hydrogen, 4 to 8 hydrogen and 4 oxygen, 4 oxygen. So option number B will be correct. But एक बार D भी हम चेक करते हैं। 3 iron atom is here, 3 iron atom is here, 2 oxygen and here is the 4 oxygen. So that's why D option is also eliminated. So option number B is your correct option. Coming to the next one, that is the 11th part. What is X in this reaction? अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। अलग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूजुअली ये रिएक्शन को ऐसे नहीं पूछना चाहिए, बट इट्स गिवन इन सैम्पल पेपर, सो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड ओवर हियर। व्हाट इज एक्स इन द रिएक्शन? सी एल्युमिनियम इज हियर एंड इट इज बीइंग रिएक्टेड विद द वाटर। अब देखो एल्युमिनियम को जब एटमॉस्फेयर की तरह छोड़ देंगे, सो देयर विल बी अ लेयर ऑफ कोटिंग ऑन इट, ठीक है। अब उस लेयर ऑफ कोटिंग को आप बोलते हो कि इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर हो जाएगी, सो देयरफॉर ये रिएक्ट नहीं करता है हमारा जल्दी। बट द वे इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, हम उसके अकॉर्डिंग पे ही आंसर देंगे कि इसके साथ ये रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहेगा। सो ये व्हाट दिस XC ओवर हियर। सो देखो Al होल थ्राइस तो बनेगा नहीं बिकॉज ऑलरेडी एल्युमिनियम का है कंपाउंड बन चुका है। O3
ये भी नॉट पॉसिबल। एल्युमिनियम इंडिविजुअल एटम मेटल्स आर रिएक्टिव, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में तो वो अकेला एग्जिस्ट करेगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट योर, दैट इज अ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सॉरी, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। Metals are refined by using different methods. Which of the following metals are refined by electrolytic refining? अब इसमें से कौन सा हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के हेल्प से यहाँ पे निकालेंगे? और देखते हैं ऐसे सभी मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर पोजीशन पे आते हैं, यानी जिनकी रिएक्टिविटी क्या है हमारी, दे विच आर ऑफ देम ऑफ लो रिएक्टिव, तो फॉर देम वी यूज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो अब देखो सोडियम और पोटेशियम तो हाई रिएक्टिव है, इनके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम करेंगे नहीं यहाँ पे, इनके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज़ होता है। फॉर कॉपर एंड फॉर दैट इज गोल्ड वी नीड टू दिस यूज दिस थिंग। सो फर्स्ट एंड सेकंड आप चेक करो कहाँ पे, फर्स्ट इस ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट ऑप्शन। यस, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। सी द फॉर्मूला ऑफ फोर, वेट, यस, द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोन बिलो। देखो एक यहाँ पे है कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग, इट डज मीन इट्स योर एल्कीन, राइट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग, ये एल्कीन है हमारा। COH, अब देखो ये कंपाउंड कौन सा है आपका, आई एम जस्ट मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑल्सो, समटाइम्स हो सकता है मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ अब इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए, सो इसलिए ऑप्शंस लिखते चलते हैं। CH3 यहाँ पे, and then after CH2OH, that is a ethanol is given here, and here it is given CH3 that is a ethane is given here, right? Now see, हमसे पूछा था कि कौन सा इसमें से हम लोग का हाइड्रोकार्बन, नहीं, द फॉर्मूला 4 हाइड्रोकार्बन से गिवन, क्वेश्चन इज नॉट राइट, सो लेट मी erase the things here and then you can see the question. Yes, choose the correct option। अब इसमें से हमसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आप देखो इट्स बीइंग गिवन इन द क्वेश्चन कि फर्स्ट एंड सेकंड आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो और देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड है कि नहीं। फर्स्ट तो है सैचुरेटेड, बट सेकंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, इट्स अ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, सो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, ये आपका एक गलत हो जा रहा है। बी ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, थर्ड एंड फोर्थ, यस थर्ड इज अनसैचुरेटेड क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग है, बट फोर अनसैचुरेटेड नहीं है, इट्स अ एथेनॉल, इट्स नॉट अ हाइड्रोकार्बन ओनली, सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। कमिंग टू द सी पार्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस फर्स्ट टू थर्ड, यस दिस इज अ राइट ऑप्शन। सी हाउ, कैसे होगा ये हम लोग का, सी अब इसमें करते क्या है, सपोज हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल हैपन इन द, दिस विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज अ कैटलिस्ट, सो एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दो, एक हाइड्रोजन आप इसके साथ अटैच कर दो, सो द रिजल्ट विल बी हियर कार्बन कार्बन हियर, तो अब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्डिंग, बिकॉज वी नो दैट कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट इन नेचर, सो एनी हाउ 4 बॉन्ड से ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते। अब एक हाइड्रोजन ऑलरेडी ऐड हो गया, तो यहाँ पे जब 2 बॉन्डिंग था वो रिड्यूस होकर 1 हो जाएगा, सो यस वी विल ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट एज अ थर्ड प्रोडक्ट, सो इट डज मीन कि हमारा यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हमने लिखा है सी वाला ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ये सी वाला हम लोग का ऑप्शन राइट ऑप्शन है। एक बार बट हम डी भी पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट चेंजेस सेकेंड टू 4, नो, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि कह रहा है कि इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा, उल्टा है, इफ़ वी आर गोइंग टू ऐड अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट दैट इज KMnO4 टू दिस फोर्थ, तब जाके ये सेकेंड बनेगा, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, याद रखना इस चीज़ को आप। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 mole of which, just wait, 1 mole of which of the following compounds requires 2 moles of hydrogen to form a saturated hydrocarbon by catalytic hydrogenation? Simple, this is a addition reaction। देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एडिशन रिएक्शन का क्वेश्चन ये है, एंड दिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज अ कैटलिस्ट, और किसके साथ एडिशन करने को कह रहा है, हाइड्रोजन के साथ। रिमेंबर यहाँ पे जो 2 मोल दिया है, 3 मोल दिया है, इससे सिर्फ आप कंफ्यूज हो गए, नीड नॉट टू वरी अबाउट, क्योंकि बैलेंसिंग जब आपको करना होगा तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सो डोंट वरी अबाउट 2 मोल्स की उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, लेट इट बी एज इट इज़, जस्ट ओनली फाइंड आउट कि एडिशन रिएक्शन दिया है, सो एडिशन रिएक्शन आर ऑलवेज गिवन बाई only and only unsaturated compounds, सॉरी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अब आप चेक करो इसमें से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से है, जो डबल बॉन्डिंग वाले हैं आप, ठीक है, यू विल दिस इज हाउ यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखो आप यहाँ से, अब सॉरी you will have your required result over here, see देखो यहाँ से फर्स्ट वन ऑप्शन आप देखो, कार्बन कार्बन देखो डबल बॉन्डिंग यहाँ दिख रहा है,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग यहाँ दिख रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग यहाँ दिख रहा है आपको। हियर इन दिस केस देखो यहाँ पे अब ये क्या हो गया आपके पास, COOH हो गया हम लोग के पास, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ रिएक्शन कुछ डिफरेंट वे में होने लगेगा। यहाँ पे भी देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग, दैट्स ऑल्सो योर अनसेचुरेटेड, राइट। सो योर ऑप्शन विल बी, अकॉर्डिंग टू मी योर ऑप्शन मस्ट बी, पहला ऑप्शन सही होगा हम लोग का, ठीक है। सेकेंड हो सकता है हम लोग का सही ऑप्शन, एंड देन आफ्टर फोर्थ वन। तो देखो कोई ऑप्शन है कि नहीं इस तरीके से हम लोग को दिया हुआ। लेट मी सी, first and sorry, triple bonding is there, it will not give this reaction, so therefore your options will be first and second, where it is given, yes, this A part, the first and second will be your right option of this question. Coming to the 15th question, while studying the saponification reaction, देखो जब saponification reaction हम कराएंगे यहाँ पे, what do you observe when you mix equal amount of colorless vegetable oil and 20% aqueous solution of NaOH? वेरी सिंपल, जब हम लोग ये करते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस, यू ऑल मस्ट हैव रेड दिस थिंग, कि जब सैपोनिफिकेशन हम कराते हैं, सो दिस इज़ योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो इट डज मीन जो बीकर है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, देयर विल बी द हीट और इवोल्यूशन ऑफ हीट, तो बीकर हमारा गर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है, या देखो यहाँ पे एकदम साफ साफ लैंग्वेज में लिखा है, द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर हैज़ बिकम हॉट, सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इसमें हम और भी ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट वी कैन गिव द आंसर। Coming to the 16th, that is I guess last MCQ questions, right? Then after we'll discuss sort of type questions. 16th question, see here, the outer sorry, CS3CS2OH, the name of this compound is your ethanol, right? क्या कर रहे हैं हम लोग, एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हैं, तो इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू CS3COH विच इज़ योर एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड ऑल्सो यू कैन से। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इन द गिवन रिएक्शन द अल्कलाइन KMnO4 एक्ट एज अ, सिंपल सी बात है, एक ऑक्सीजन था, नाउ नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड ओवर हियर, इट डज मीन द टाइप ऑफ रिएक्शन हियर इट्स अ ऑक्सीडेशन, एंड इन ऑर्डर टू कैरी आउट ऑक्सीडेशन, ठीक है, राइट, वेट, it's here oxidation, it's your oxidation reaction, right? And in order to carry out oxidation हमें oxidizing agent की जरूरत पड़ेगी, ठीक। I just wanted to know from you all in the comment section, can you all tell me the name of dehydrating agent that you have used 2 times in your during the study of your carbons compound chapter? I would like to know what you'll answer if the question is being asked about dehydrating agent, right? Coming to the sort of type, the very first question, what is given over here, yes, that's also important question. Silver article generally turns black when kept in open for few days. The articles when rubbed with toothpaste again start shining. Why do silver articles turns black when kept in the open for few days? Name the phenomena. सिंपल सी बात है, देखो फिनोमेना तो आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग का केस है, कोरोजन का केस है। रिमेंबर रस्टिंग नहीं लिखना है यहाँ पे, ये कोरोजन का केस है, राइट। एंड कोरोजन के केस में आप इन ब्रैकेट यू कैन ऑल्सो राइट टार्निशिंग, इन ब्रैकेट यू कैन ऑल्सो राइट टार्निशिंग, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखना, बट मेन द कॉन्सेप्ट दैट इज अप्लाइड ओवर दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोजन। अब हो क्यों रहा है, अब ये समझो, इट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट कि एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस रिलीज़ हो रही होगी, उसी के साथ ये आपका सिल्वर का आर्टिकल जो कि यहाँ पे लिखा ना कि द सिल्वर आर्टिकल था हम लोग का, रिएक्ट किया होगा। अब हमें पता है कि एटमॉस्फेयर तो ऑक्सीजन गैस भी होगा, और यही 3 चीज़ें देखो आपस में रिएक्ट की होंगी, एंड इट वुड हैव फॉर्म्ड सिल्वर सल्फाइड, दैट इज Ag2S बना होगा। दिस इज योर ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, लिखा ना यहाँ पे देखो, फॉर्म व्हेन केप्ट ओवर फॉर्म्ड है द आर्टिकल्स व्हेन रब्ड टूथपेस्ट अगेन, देखो लिखा ना, हाँ ये टर्न्स ब्लैक, तो ये जो ब्लैक कलर है वो यही Ag2S है, दैट इज कॉल्ड एज सिल्वर सल्फाइड। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया आपको। नेक्स्ट, नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हो गया हम लोग का, एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो वी ऑल हैव डन दिस। तो ये इक्वेशन लिख के ही आप सॉल्व करोगे। कीप इन माइंड द नेम ऑफ दिस Ag2S इज सिल्वर सल्फाइड, H2S होगा और O2 भी साथ में होगा, बिकॉज इट इज बीइंग गिवन केप्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर फॉर फ्यू डेज। आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, classify the following reactions into different type of reaction. It's very easy. That's a clear question is here.
AgNO3 NaCl कंबाइन किया, देखो दोनों ही स्टेट एक्वस है, तो इट डज मीन क्लियर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस, राइट। सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3। अब देखो एक सब्सटेंस सॉलिड में आ गया आपका, एक एक्वस में है। सो और बाय दिस वे और ऑल्सो बाय दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि सोडियम मोर रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस किया एंड नाउ सिल्वर हैज टेकन दिस पोजीशन AgCl, सो 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज योर double displacement reaction, right? I hope this one is clear to you. Then after 2KClO3, what is this KClO3? That is a potassium chlorate. देखो number of जो reactant molecule है that is single, only one reactant molecule is there, but after reaction देखो कितना है हमारे पास, 2 reactant molecules है। It does mean यहाँ पे ये एक reactant molecule टूट रहा है 2 different में, so the type of reaction is your decomposition reaction. But keep in mind, I would prefer to say that not only or to write decomposition reaction, you will have to write thermal decomposition, because one thing I have left over here in this question making part, यहाँ पे डेल्टा का सिंबल होना चाहिए था, अभी मैं देखो यहाँ पे लिख दी हूँ डेल्टा सिंबल। सो बिकॉज डेल्टा मीन्स आप हीट कर रहे हो, सो देयर फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी योर थर्मल डिकम्पोजिशन। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, you are given 2 solutions A and B and their pH is 6 and 8 respectively। क्या पूछा जा रहा है इसके बाद हमसे, इनका pH 6 और 8 है, राइट। सो इट डज मीन जिसका pH 6 है इट इज़ योर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब या तो माइंड में इतना सोच लेना या मेरी तरह आप लिख लेना एग्जाम में। एंड जिसका 8 है दैट इज़ अ बेसिक इन नेचर, बिकॉज हमें पता है 7 से बाहर जाता है तो 7 से अबव, तो इट विल बी बेसिक इन नेचर। विच ऑफ द 2 सॉल्यूशंस हैव मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखो pH जितना ज़्यादा एसिडिक होगा लेस विल बी द pH वैल्यू, ठीक है, उसकी pH वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी हमारी, और अगर ज़्यादा हुआ यानी बेसिक हुआ तो pH वैल्यू बढ़ती चली जाती है। क्लियर। नाउ हाउ दिस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज रिलेटेड, जिसमें जो ज़्यादा एसिडिक होगा भाई उसी में H+ आयन हमको मिलेगा, सो देयर फॉर दिस वन ए वाला ऑप्शन आप लिखोगे कि ए का pH 6 है तो ये एसिडिक है, देयर फॉर इट विल हैव द मोर, हमसे क्या पूछा है, यस मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो पहले का ऑप्शन ए लिखोगे आप। रिमेंबर विथ पॉसिबल सुटेबल रीजंस दैट आई हैव एक्सप्लेन राइट नाउ यू नीड टू राइट। थर्ड सेकेंड वन, व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन इज नथिंग, जस्ट सिंपली द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, but remember how water should be added in acid or acid should be added in water. There is always a prime confusion among the students, so I'm just making this thing clear at this sort of time. Acid should be added in water, water should not be added in acid, and this process is called as a dilution. And remember this is a exothermic process, so therefore while dilution, आप लिख लेना इस चीज़ को, एग्जाम में लिखना इस चीज़ को कि while dilution proper continuous stirring with the glass rod is required, because this reaction is highly exothermic, right? I hope this one answer is also clear to you. Now coming to this fourth question, very easy question, right? चलो देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इट इज़ गिवन टू अस, कोई कंपाउंड X है हमारा, ठीक है, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। शायद हो सकता है यहाँ से आपको आइडिया न लगे तो ये दो आपको आइडिया दे देंगे। दिस कंपाउंड X अगेन HCl से रिएक्ट करने पे HCl जो कि एसिड है ये दे रहा है हम लोग को, और वाटर, तो देखो HCl एसिड है तो इट डज मीन कहीं ना कहीं X के लिए हमें हिंट दे रहा है कि दैट X मस्ट बी अ बेस, राइट, कि X हमारा ये बेस होगा। थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ से हिंट मिल रहा है, बिकॉज वी नो दैट कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट देन ओनली दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो B के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि बेस हम लोग का ये X होगा। तो सपोज करो कोई भी बेस लो आप, तो वेरी कॉमन बेस दैट वी स्टार्ट टीचिंग, स्टार्ट लर्निंग क्लास 10th केमिस्ट्री एसिड बेसल, दैट इज NaOH, तो हमने वही ले लिया यहाँ पे। सपोज आई हैव टेकन NaOH base, you can take any of the base like calcium hydroxide, ammonium hydroxide as per your choose, right? अब देखो इसके HCl के साथ इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं, so what will happen? We know that there will be the formation of NaCl along with the water, तो हमें ये मिल गया, देखो कि this one is your B part, ठीक है, ये हमें B का मिल गया कि B हमारा क्या होगा यहाँ पे NaCl होगा, राइट। अब सेम कंपाउंड X हमारा इसके साथ रिएक्ट कर रहा है CH3COH के साथ, तो और ये रिएक्शन आपको लिख के दिखा देता हूँ। NaOH, नाउ इफ इट इज़ बीइंग रिएक्ट विद द CH3COOH, व्हाट विल हैपन? अब इसके साथ देखो ये रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर अगेन फॉर्म करेगा एंड इट विल फॉर्म सोडियम एसीटेट, दैट इज CH3COONA अलॉन्ग विद द वाटर मॉलिक्यूल। ये जो CH3CONA है ये आपका आ गया C पार्ट,
ठीक। अब बात आती है ए पार्ट, मैंने अभी नहीं डिस्कस किया। देखो NaOH, sodium hydroxide, it is being react with the zinc. We know that it will form sodium zincate. The formula of sodium zincate is Na2ZnO2, that is called as sodium zincate along with the hydrogen. So now I hope this question is clear to you कि A क्या बनेगा, B क्या बनेगा और C हमारा क्या बनेगा, right? This fifth question, I'll not discuss this fifth question because this fifth question have been already discussed number of times. Easy भी क्वेश्चन है आपका कि कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास 40 है, नंबर ऑफ टाइम्स यस इट हैज गिवन आई गेस, यस देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 40 गिवन है, आप कर सकते हो दिस क्वेश्चन। नंबर टाइम्स आई हैव डिस्कस इन द वेरियस वीडियोस दैट हैव ऑलरेडी प्रीवियसली अपलोडेड ऑन द चैनल। मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक करना। एंड द सेम सिक्स क्वेश्चन ऑल्सो, सी स्टूडेंट्स वाई आई एम इग्नोरिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑलरेडी इट्स 30 मिनट, आई डोंट वांट टू मेक दैट मच लेंदी वीडियो। अब ये क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस किया है एक पिछले वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, फ्रॉम देयर यू कैन सी द सेम क्वेश्चन इट इज़ हियर, राइट। हाँ, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, चलो शॉर्ट में वो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। लाइक एस्टरीफिकेशन रिएक्शन आप पढ़े होगे, राइट, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज ऑफ किसके साथ, देखो पॉपसॉन यानी हाइड्रोजन गैस का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो अल्कोहल का क्या बनेगा आपका ये, तो इन कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, दैट यू कैन सी इन दैट प्रीवियस वीडियो। आई एम जस्ट अटैचिंग इट राइट नाउ इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। I hope your exams, you will do very good in your exams, excel in your exams. Best of luck for your exams. I'd love to hear the positive comments, positive answers from just after you all have attempted your exams. Thank you for watching.